Good morning, children. How are you? I hope that you all are very fit, very fine, and very happy. And children, as you know that we have completed the chapter Ranga's marriage. And children, I have not sent you the PDF of question answer of both the chapter, the address, and the Ranga's marriage. So, children, I will send the question answer. Don't worry about that. And I will send you the question and answers of both the chapters, the address and the Ranga marriage later. So, in today's lecture, we are going to start the next chapter from the snapshot, that is the Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. So, let's start the chapter from your snapshot, that is the chapter number 4. So, let's begin the chapter with the introduction about the author, and then introduction of the chapter, and then the summary. Now, children, let's know about the author of the chapter, that is the Albert Einstein School. The author of this chapter is Patrick Pringle, and Patrick Pringle is Professor Emeritus of Earth Science at Centralia College, Washington, and he was research geologist at the DNR Washington Geological Survey during 1990 from 1990 to 2005, and was with US Geological Survey Cascades Volcano Observatory from 1982 to 1990. Pat studies volcanoes, earthquakes, landslides, and debris flows, commonly using radiocarbon and tree ring analysis to establish the history of past geological events. He is the author of books on the roadside geology of Mount St. Helens, and you can say that Rayner book, and he won the Geoscience Information Society's Best Guidebook Award for 2009, presented at the Geological Society of America's annual meeting that year. And he has received several teaching awards, including Washington Association of College Trustees Faculty of the Year in 2016. यानी माउंट रेनियर बुक जो थी वो 2009 के लिए जियो साइंस इंफॉर्मेशन सोसाइटी का बेस्ट गाइड बुक अवार्ड उसने बुक ने अवार्ड जीता था, जो उस साल की जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की जो एनुअल मीटिंग थी उसमें उसको प्रेजेंट किया गया था। और उन्होंने 2016 में वॉशिंगटन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ट्रस्टी फैकल्टी ऑफ द ईयर के साथ कई जो है टीचिंग जो कह सकते हैं कि अवार्ड उन्होंने जो है वो जीता था। सो दिस इज़ द पैट्रिक प्रिंजल, द ऑथर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. Now let's begin the chapter with the introduction. With its introduction, first we will know the introduction. Albert Einstein at School. What is the introduction of the story? Let's begin. So the lesson, Albert Einstein School, is an extract from the biography of Albert Einstein named The Young Einstein by Patrick Pringle. And in this lesson, Patrick familiarizes the reader with those years in Einstein's life where he was struggling each day in school and each day passed. The school diploma felt like a far-fetched dream. It throws light upon a few encounters with his teachers and what he felt about the neighborhood he lived in, and how he had only one good friend, that is the name was Yuri. The way Albert strategizes to get out of the miserable place that is school, and for him the school was a miserable place because he did not want to learn things. He wanted to observe, he wanted to know, he wanted to grasp the thing. So for him, he believed that the school was a miserable place, and how things turn around in the end makes the story even more interesting and more you can say that more full of joy and full of excitement. So this is the small introduction. Now let's know first, before the explanation of the paragraphs,
first we will know about the summary. Now the lesson begins with little Albert's encounter with the history teacher, and where the teacher is asking him about a particular date from the past, as usual, our unattentive Albert does not know the answer. So this moment leads us to a little speech given by Einstein in the class about what education should include, and what they are being taught is irrelevant. It ends up in him being punished by the teacher, which again is not new. Then the lesson talks about how Albert disliked his neighborhood because of all the slum violence and compared it to his best friend Yuri's neighborhood, who did not like his either. Albert even expresses his worries to his cousin Elsa from Berlin, who thinks he can pass if he made a little effort. And at this point, Albert starts strategizing his way to get out of the school, and he started making planning to get out of the school, and he suddenly gets an idea that involves a doctor who is willingly to help him. So he wanted the doctor to know that he had a nervous breakdown and prescribed that the root cause of it is school, and he shall stay as far away from it as he could. This is where Yuri agrees and sets up an appointment with his friend, a freshly qualified doctor who he warns is hard to befool. Then what happened? Then what happened? Albert thinks about his conversation with the doctor so much that at this point he is actually nervous. On meeting the doctor, he comes to know that Yuri has already told him everything, and the doctor is ready to help him. The doctor understands how tiring school can be, asks Albert his plans after he gets out of the school and realizes he is doing no good to him, or you can say that and anyone by staying there. Thus, he hands him his medical certificate and in turn asks him to take Yuri out for a meal. Although excited, Albert had no money to spare, and he took Yuri out of supper. He is next seen with his maths teacher, who is giving him a referral to make it easier for him to get into a college for pursuing higher mathematics. Einstein had studied all the maths they teach in school and even some more. He is then summoned to head teacher's room, where he is told to walk away as hardly any serious work can be accomplished when he is around. As tempting it was for Albert to tell the head teacher the truth and what he thought about his school, he resisted at it and walked straight out of the school with his head high. He said goodbye. He said goodbye to his only friend Yuri, and Elsa was back in Berlin by that time. At last, what happened? At last, Albert was out of school. So this is the small summary of the chapter, and when we will start the explanation of the paragraph, then you will find more exciting things in the chapter. So let's know the summary in Hindi also. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम फिजिक्स वर्ल्ड का फादर भी कहते हैं, उनको हिंदी में जनक भी कहते हैं. तो उनकी जो ये स्टोरी उनके बारे में है, और उनकी जो उन्होंने किस तरीके से फ़िज़िक्स में एक रिवॉल्यूशन लेकर आए आइंस्टाइन. और एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो फ़िज़िक्स की दुनिया में एक कहते नहीं गोल्डन नेम है उनका नाम. हालांकि हम लोग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि उन्होंने अपने जो शुरुआती स्कूल के जो दिन थे वो एक बहुत ही सुस्त और बहुत ही लेज़ी स्टूडेंट रहा करते थे,
और उन्हें अपने स्कूल से जो है इसी वजह से जो है वो कि वो उनका स्कूल में मन नहीं लगता था और वो लर्निंग प्रोसेस में बिलीव नहीं करते थे, तो वो स्कूल से उनकी इस एक्टिविटीज़ की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो स्कूल में के कारण उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। अब कोई भी टीचर जो है उन्हें पसंद नहीं करता था और वह भी बदले में स्कूल में जाना पसंद नहीं करते थे। तो इसकी वजह से, इसके कारण जो है उसकी बिकॉज ऑफ दिस स्कूल ने जो है एट लास्ट उनसे पीछा छुड़ाने का फ़ैसला किया। और तो कहानी की जो शुरुआत है, जो द स्टोरी बिगिंस जो है वो शुरुआत होती है एल्बर्ट द्वारा एल्बर्ट जो है अपने इतिहास के एक टीचर से एक तारीख के बारे में इतिहास का एक टीचर जो होता है, जो एल्बर्ट अपने स्कूल में अपनी क्लास में उनकी क्लास के जो हिस्ट्री टीचर होते हैं वो उनके बारे में एक डेट्स के बारे में वो इवेंट पूछते हैं। यहाँ से कहानी की जो है वो शुरुआत। तो डेट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में हिस्ट्री टीचर जो है वो सवाल करते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं और यहाँ से जो है वो स्टोरी बिगिन होती है। अब जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो अल्बर्ट का कहना था कि इतिहास की जो तारीख होती है, डेट्स होती है, याद करना जो है वो फुलिशनेस है, यानी वो मूर्खता है, क्योंकि किसी भी समय उन्हें किताब में देखा जा सकता है। डेट्स जो है यू कैन सी एट एनी टाइम इन बुक, किताबों में देखा जा सकता है, इसलिए उसे याद करना बेवकूफ़ी है। वह एजुकेशन में विश्वास तो करते थे लेकिन सीखने के जो फैक्ट्स थे उसको वो शिक्षा नहीं मानते थे। वो कहते थे सीखने के तथ्यों को शिक्षा नहीं मानते थे। मैंने कहने का मतलब था, लेकिन सीखने के जो तथ्य, जो फैक्ट्स होते थे को शिक्षा वो नहीं समझते थे। मतलब वो कहते थे कि अगर सीखना है तो आप कुछ ऑब्ज़र्व करके उसके ऊपर अपना वर्क करो, अपना माइंड लगाओ। अब क्योंकि किसी भी तो वह इसीलिए वह स्कूल से बहुत ही ज़्यादा वो स्कूल में जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह शिक्षा के यानी एजुकेशन के जो एक ट्रेडिशनल जो फॉर्म था, जो पारंपरिक रूप था, जो एक ट्रेडिशनल फॉर्म था, उससे वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे। और टीचरों ने उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी किया और उनका अपमान भी बहुत किया, क्योंकि वो अगर स्कूल ना पसंद करते थे स्कूल को, क्योंकि उनको स्कूल एक ऐसा कैंपस लगता था उनके लिए। फॉर आइंस्टाइन ही बिलीव्ड कि एक वहाँ पे याद करने का जो एक प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के डोर्स को बंद कर देता है। हमारे थॉट्स को जो हम सोचते हैं वो हम तक पहुँचने या हमारे माइंड को या हमें चीज़ों को समझने में मदद नहीं करता है, जो याद करने का प्रोसेस है। तो अगर हम याद ना करके चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और उन चीज़ों को अपनी तरह एक्सप्रेस करें तो मे बी हम ज़्यादा ब्रॉड हो सकते हैं और हम ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। अंत में क्या होता है कि शिक्षक ने घृणा और ये मतलब नफ़रत और उनसे तंग आकर उसे अपने पिता उसे फादर को उन्होंने लेटर लिखा कि आप अपने बच्चे को या अपने बेटे को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। आइंस्टाइन जो भी है वो घर आने से भी नफ़रत करते थे और ये ख़राब मतलब ये नहीं कि आइंस्टाइन के घर अच्छा घर नहीं था या अच्छे खाने को नहीं मिलता था सामान, या अच्छा खाना खाने में मिलता नहीं था, या आराम की लाइफ नहीं थी, इसलिए वजह से वो घर जाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि वो अपने पड़ोस में जो एक वायलेंस उनके पड़ोस में बहुत ही वायलेंस माहौल टाइप का बना हुआ था, उससे वो नफ़रत करते थे। तो वह स्कूल जाने और एक एजुकेशन पैटर्न, इस तरह के जो सेट एजुकेशनल पैटर्न था, उसको अपनाने के विचार में इतना ख़िलाफ़ इतने थे कि उन्होंने एक बार अपने दोस्त से कहा कि उसे लगता है कि वह कभी भी स्कूल डिप्लोमा के लिए जो है एग्ज़ामिनेशन पास नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने एक बार अपने चचेरे भाई एल्सा से भी यही कहा कि वह जो है वह साइंस का जो स्टडी केवल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह पसंद है। फिर जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट था उसको पढ़ने के लिए उन्हें बहुत सारे वजहों की आवश्यकता थी, बहुत सारे कारणों की भी आवश्यकता थी। उसे हम कहते थे म्यूनिक में यह अध्ययन कर उन्हें म्यूनिक साइंस का स्टडी करने के लिए उन्हें म्यूनिक जो है वो भेजा गया और वह 6 महीने के अंदर ही वह वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह अपने पिता के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ पे उनका मन नहीं लगा, वहाँ वो पढ़ नहीं पाए। अब ये एल्बर्ट के बचपन का एक मोमेंट था जब उन्होंने स्कूल को हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहा। उन्होंने अपने दोस्त यूरी, उनका एक ही दोस्त था जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बहुत ज़्यादा उससे सारी बातें शेयर करते थे। उनके दोस्त का नाम था यूरी।
तो उन्होंने अपने दोस्त यूरी से एक दोस्ताना डॉक्टर की तलाश करने के लिए कहा जो उन्हें स्कूल में एक प्लानिंग के थ्रू उनको पागल घोषित कर दे। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि उन्हें वो चाहते थे कि यूरी की मदद से एक ऐसे डॉक्टर का इंतज़ाम हो जाए जो डॉक्टर उनके प्लानिंग में वो शामिल हो जाए और डॉक्टर उनके कहने पर उनको स्कूल में पागल मैड घोषित कर दे। वह चाहते थे कि डॉक्टर उसे नर्वस ब्रेकडाउन के से जो सफरिंग जो व्यक्ति होता है, नर्वस ब्रेकडाउन से जो व्यक्ति पर्सन होता है उसके ही फॉर्म में वो उसको प्रमाणित करे या उसको ये बताए कि ये नर्वस ब्रेकडाउन इसका हो गया है और ये पागल हो चुका है पर्सन, ताकि वह स्कूल से दूर रह सके। तो इस डॉक्टर के लिए एल्बर्ट ने गणित और अपने जो मैथमेटिक्स के टीचर थे उनके लिए अपना प्यार बहुत बताया कि आई लव द मैथमेटिक्स टीचर्स। तो उनको अपनी प्लानिंग कामयाब करनी थी क्योंकि उनको अपने स्कूल से निकलना था। फिर बाद में स्कूल में उन्होंने अपने गणित के जो टीचर थे, जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, उसमें एक रेफरेंस उन्होंने लेटर लिखा। यह तब है जब उन्होंने अपने मैथमेटिक्स टीचर से सबसे कह सकते हैं अमेजिंग स्टेटमेंट उन्होंने सुना, जिन्होंने कहा कि मुझे पता था कि आप खुद को जानने से पहले स्कूल छोड़ देंगे। ये पढ़कर स्टेटमेंट पढ़ के एल्बर्ट को बहुत ही आश्चर्यजनक हुआ और उन्हें लगा कि माय गॉड, मुझे तो ये इतना यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी मान जाएंगे और मुझे समझ जाएंगे। लास्ट में क्या होता है कि जिस दिन एल्बर्ट को प्रिंसिपल बुलाते हैं वह बिल्कुल ही बेफिक्र थे, वो बिल्कुल ही चिंतित नहीं थे, बिल्कुल उनको कोई भी परेशानी नहीं था कि जब ऐसा कुछ हुआ। हालांकि अब हेडमास्टर जो थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि वह जो है शिक्षा के जो प्रति जो है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हेडमास्टर कहते हैं कि वो एजुकेशन के लिए या जो एजुकेशन के जो तरफ से एल्बर्ट के जो का बिहेवियर है, एजुकेशन के लिए जो एल्बर्ट का बिहेवियर है, जो मोड ऑफ कंडक्ट है और क्लास में जो उसका बिहेवियर है, अब प्रिंसिपल जो है वो टॉलरेट या बेयर नहीं कर सकते हैं। यानी प्रिंसिपल ने साफ साफ कह दिया कि अब एल्बर्ट का जो ये बिहेवियर है एजुकेशन को लेके, लर्निंग को लेकर और क्लास में जो उसका बिहेवियर है, वो अब जो है वो बेयर नहीं कर सकते, अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और उनका मानना था कि इसने जो है एजुकेशन के लिए एक जो माहौल था एजुकेशन का, स्कूल का, इसने ख़राब कर दिया, उसके एनवायरनमेंट को इसने ख़राब कर दिया। तो इस तरीके से इस प्रकार जो है, इस तरीके से वह चाहते थे कि एल्बर्ट स्कूल छोड़ दे, यानी प्रिंसिपल चाहते थे कि एल्बर्ट स्कूल तुरंत छोड़ दे। और फिर एल्बर्ट ने भी ये रियलाइज़ किया, ये महसूस किया कि मेडिकल रिपोर्ट अब उनके कोई काम की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो प्रिंसिपल जो है वो मेडिकल रिपोर्ट, तो उनकी एक प्लानिंग थी कि वो मैड घोषित करने की, मैड डिक्लेयर करने की, लेकिन वो यहाँ तक वो ये नौबत नहीं आ पाई। और उससे पहले ही हेडमास्टर ने, प्रिंसिपल ने उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया कि यू आर नॉट कैपेबल, यू आर नॉट जो है, आप इस लायक नहीं हो, आप स्कूल के वातावरण या इन्वायरमेंट को जो है आप स्पॉइल कर रहे हो। तो वो एल्बर्ट को स्कूल में रखना नहीं चाहते थे। तो एल्बर्ट का काम ऐसे ही हो गया, उन्हें वो कोई सर्टिफिकेट या कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। अब उसने उस स्कूल को छोड़ दिया जहाँ उसने 5 दुख भरे वर्ष बिताए थे। 5 साल उसने दुख भरे साल बिताए थे। उसे ऐसा करने के लिए एल्बर्ट को ऐसा करने में बिल्कुल दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि स्कूल उनके लिए नहीं बना है या वो स्कूल के लिए नहीं बने हैं। फिर म्यूनिक जाने से पहले यूरी ने जो है उन्हें अंतिम विदाई दी। वो उन्हें यूरी ने उन्हें गुड बाय कहा और फिर उन्हें बहुत सारी ढेर सारे विशेस की, यानी उन्होंने स्कूल छोड़कर वो म्यूनिक चले गए फर्दर स्टडीज़ के लिए, फिजिक्स की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई करने के लिए। तो इस तरीके से जो है एल्बर्ट 5 साल तक उस स्कूल में रहे, जो उनके लिए बहुत ही दुख भरा साल था, क्योंकि वो स्कूल को पसंद नहीं करते थे। तो ये आपकी छोटी सी स्टोरी है, एंड यू विल एंजॉय व्हेन वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफ. So children, we will stop here, and in next lecture we will start the explanation of the paragraphs. So in next lecture we will start the explanation of the paragraph, and then take care of yourself and your family, and always have a smile on your face. And children, as I told you that I will send you the PDF of both the chapters later, and don't worry about the question and answer. I will send the question answer of both the chapters to you. So take care of yourself. Goodbye.